Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Jaya Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Should we just run it? I'll try my best, Prabhuji. I'm doing for the first time. Jai Shri Prabhupada ki jai. So, this one 926. I'll first speak a little bit. Pardon me? I will first speak a little bit. Okay. Then I will only read from the Gita. Okay. And I will just read only like, not the full purport. Okay. 926. Yeah. You will read this? Yes, somewhat. I'll read this as we go. So you can leave it now. You don't need the Gita right now. Hare Krishna. So, we all welcome you here. It's very nice that you have come. आप सभी का स्वागत है और यह बहुत अच्छी बात है कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं. Can you all hear properly? आप सभी मुझे ठीक अच्छी तरह सुन सकते हैं? सुन सकते हैं सभी? Just because of the rain. Noise. You can leave it open, there's no problem, but they can hear. सभी सुन सकते हैं आप? प्रभु जी की आवाज सुन सकते हैं? Okay. So, now we are coming to the time when there are some very auspicious festivals going to be celebrated. इन दिनों में बहुत ऑस्पिशियस फेस्टिवल्स है और अभी ये समय आने वाला टाइम में बहुत सारे फेस्टिवल्स हम ऑब्जर्व करेंगे. In 1 week, then we are going to be celebrating Lord Balaram's appearance day. एक हफ्ते के अंदर हम लॉर्ड बलराम के अपीयरेंस डे ऑब्जर्व करेंगे. Then after that, it's going to be Krishna's appearance day, Janmashtami. उसके बाद भगवान कृष्ण के आविर्भाव दिवस है, जन्माष्टमी. And then, now after that, then it's going to be Radha Ashtami. और उसके पश्चात जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो है राधाष्टमी. Now I'm sure that now all of you always celebrate these festivals. मैं ये जानता हूं कि आप सभी फेस्टिवल उत्सव जो है उसको मनाते हैं.
Whether you are celebrating them at home or you come to the temple for the celebrations. चाहे आप अपने घर में ये जो उत्सव मनाएं या चाहे मंदिर में आकर मनाएं. And you prepare a lot of items to offer to the Lord. और मुझे विश्वास है कि आप सभी अनेक प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत करते हैं, तैयार करते हैं भगवान को ऑफर करने के लिए. Many bhoga offerings for Krishna, chapan bhog. जो भगवान कृष्ण के लिए जो भोग ऑफर किया जाता है 56 भोग कहलाता है. So like that, now the festival will be there. Like that, the festival will be there. Like that, इस प्रकार के जो उत्सव है उसको हम सभी मनाते हैं. So I don't need to go into much details, but I would like to focus on what's okay. ये इसके डिटेल्स में जाने की मुझे जरूरत नहीं है. मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहूँगा. I would like to focus on what's going to happen before the festival. कि ये उत्सव से पहले क्या क्या होता है, मैं उसी के ऊपर ही जो आज का प्रवचन है उसको फोकस करना चाहूँगा. Before each festival, then there is something which is called adivas. ये उत्सव से पहले जो किया जाता है प्रक्रिया है उसको अधिवास कहते हैं. And it's before Janmashtami, or it's even before you have marriage, right? Celebrating marriage. जैसा कि आप कोई विवाह आयोजन के पहले भी करते हैं और जन्माष्टमी के जो उत्सव है उससे पहले भी जो आयोजन किया जाता है उसको अधिवास कहते हैं. So before every auspicious ceremony there should be an adivas. इस प्रकार के सभी ऑस्पिशियस जो आयोजन है उससे पहले अधिवास होता है. And adivas actually means that there is a showing of auspicious items or doing some auspicious activities for the person whom the celebration is meant. अधिवास का मतलब यह है कि जिस भगवान के लिए जिनके लिए हम उत्सव मनाते हैं उनके स्वागत के लिए कुछ ऐसे पवित्र कार्यक्रम आयोजन हम करते हैं उसको अधिवास कहते हैं. So you can say it's one kind of form of a samskara. तो इसको हम इस अधिवास को हम एक प्रकार के संस्कार कह सकते हैं. Now the samskara, it means an impression on a mind. It means impression on our mind. तो इसका मतलब ये हुआ, संस्कार का मतलब ये हुआ कि हमारे मन के ऊपर उसका एक प्रभाव, इम्प्रेशन जो होता है उसका हुआ अधिवास. So before the actual ceremony, we want to focus our mind on the activity which is going to come. तो इस उत्सव से पहले, जैसे कि जन्माष्टमी उत्सव है, उससे पहले हम अधिवास के जरिए हमारा मन को मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं उत्सव के लिए. When we focus our mind with our intelligence, then we can say the whole consciousness is focused on the activity. जब हम अपने बुद्धि के जरिए अधिवास करते हैं और उसके द्वारा मन के ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है, एक प्रभाव पड़ता है, तो उसमें हमारी जो चेतना है उसका शुद्धिकरण होता है और उत्सव की मनाने के लिए जो तैयारी चाहिए हमारा चेतना में, वो एक्चुअल रूप में उसका प्रभाव पड़ता है चेतना के ऊपर. And this is very important point. ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है. The celebration now will not be complete, will not be really successful if we are not focusing our consciousness on it. क्योंकि उत्सव को मनाने का जो मकसद है वो कभी पूरा नहीं होगा जब तक कि हमारा चेतना को हम उत्सव के लिए मनाने के लिए तैयार नहीं करते हैं, तब तक उत्सव मनाने का कोई हमें फल नहीं मिलेगा. So now here we have Krishna's birthday.
right? Janmashtami. अभी हम सभी भगवान कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी के रूप में मनाने जा रहे हैं। When Nanda Maharaj was celebrating actually Krishna Janmashtami, then he was so happy and he gave out many thousands of cows and so much of wealth as a charity. जब नंद महाराज भगवान कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी मनाए उन्होंने दान में बहुत सारे गौ माता और बहुत सारे वेल्थ लोगों को दिया था। Tons of offerings, salty, sweets, so many things were cooked. उसके अलावा बहुत सारे ऑफरिंग्स दान के लिए अपने गृह में जो है उसकी व्यवस्था की गई थी। Nice decoration was done. बहुत सारे इस आयोजन के लिए जन्माष्टमी के लिए डेकोरेशंस भी हुआ था। So many flowers, so many nice leaves, mango leaves were hanged. बहुत सारे फूल में सजावट किया गया था और आम के पत्ते उससे भी सजावट किया गया था उस सब के लिए। The whole place was scented with aguru. Was scented with aguru. आगुरु से पूरा महल को क्या कहते हैं सेंटेड किया गया था, उसको महकाया गया था। And nice songs were sung. और इस उपलक्ष्य में बहुत सारे जो है गाना गाने का भी व्यवस्था की गई थी। Nice Brijbasi bhajans. नाइस भजन्स और कीर्तन का भी आयोजन किया गया था। So the whole atmosphere was very jolly, very happy. तो इस प्रकार में पूरा उत्सव का जो माहौल था वो बहुत आनंदमय था। But now, why was everybody happy? इस प्रकार में सभी लोग क्यों खुश थे उस दिन? Everybody was happy pleasing Krishna. सभी लोग इसलिए खुश थे क्योंकि भगवान कृष्ण को आनंदित करने जा रहे थे और या कर रहे थे। And because Krishna was happy, the devotees were happy, then everybody was happy. क्योंकि भगवान कृष्ण खुश थे तो इसलिए जो उनके भक्त थे वो भी खुश थे और इस प्रकार सभी जो वहां पर मौजूद थे सभी खुश थे। That is the difference now between how Nanda Maharaj would celebrate Janmashtami and how sometimes you see some celebrations nowadays when people celebrate. यही फर्क था नंद महाराज जिस प्रकार भगवान कृष्ण के जन्मदिन मना रहे थे उसमें और आजकल हम ऐसे उत्सव मनाते हैं उसमें ये फर्क है कि बेसिकली उस दिन वहां पर सभी लोग आनंदमय थे, सभी खुश थे। Nowadays it's more about ourselves. I am going to enjoy is a socializing. So I am going to I like it. It's about me, not about the person. लेकिन आजकल जो हम मनाते हैं जो सेलिब्रेशंस ओकेजन्स को मनाते हैं उसमें हम खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं और इसको ऐसे सोचते हैं कि जैसे कि एक सोशल ओकेजन है उसमें मनाते हैं, दूसरों के खुशी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। ये बेसिक डिफरेंस फर्क था। I had seen it many times in Mayapur or Kolkata when they celebrate Durga Puja. ये मैं अनेक बार देखा हूं मायापुर में या कोलकाता में जब दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन होता है। Over here what do you have? Ganesh Chaturthi, right? And Janmashtami. So when the people go out, it's not about the person. It's about socializing. I want to be happy. So जब लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं, मिलते हैं, ये इसको एक सोशल इंटरेक्शन के रूप में लिया जाता है, मिलने के रूप में लिया जाता है, ना कि दूसरे व्यक्ति को कितनी इससे खुशी मिलती है वो हमारा मन में इतना नहीं रहता है। So they dance for their pleasure. They drink, they sing, everything for their pleasure. And therefore, what songs do they play? Some Hindi pop music,
right? No, whatever they like. Not about the person, it's about me. सो जो कार्यक्रम होता है उसमें चाहे गाना बजाने का हो चाहे खाने का हो, उसमें खुद का ही हैप्पीनेस को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ना कि दूसरे व्यक्ति का, और उसका क्या पसंद है वैसा ही आयोजन होना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचते हैं. And what is the difference? तो इसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है? It can be very nice decoration, right? बहुत अच्छी तरह सजावट हो सकता है, होगा. There can be many offerings. हो सकता है बहुत सारे ऑफरिंग्स भी तैयार किया गया होगा. Like, yeah, right about the Durga Puja. Then in Kolkata they are having competition who has biggest and better, most beautiful pandal. जैसा कि कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान कंपटीशन होता है कि किसका पंडाल ज्यादा डेकोरेटेड है, ज्यादा भव्य है, उसके बारे में भी कंपटीशन होता है आपस में. So the pandal or the temple, temporary temple for Durga Devi is not offering to her. It's about I want to be first in the competition. So जब दुर्गा पूजा उत्सव मनाते हैं उसमें जो एक्चुअल पर्पस, जो मतलब है, वो ये नहीं होता कि हम दुर्गा देवी का पूजा करें या उनको ऑफरिंग दे, बल्कि उसमें ये होता कि कैसे मुझे ये कंपटीशन जीतना है, ये पंडाल का जो कंपटीशन होता है उसको कैसे हम जीतें. So again, what is the difference? तो अब इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है, क्या अंतर है? The difference lies in the consciousness. इसमें जो डिफरेंस है दोनों में वो हमारी चेतना में ही है. Why am I doing it? हम ये आयोजन क्यों कर रहे हैं, ये उत्सव क्यों मना रहे हैं? Then, if we understand that, okay, this is my offering to the Lord or to the person whose festival it is. अगर हमें ये समझ में आएगा कि ये फेस्टिवल, ये उत्सव हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जिनके लिए उत्सव मनाते हैं उनको मुझे ऑफर करना है, ना कि मेरे आनंद या मेरे हैप्पीनेस इसके पीछे है. Then the person becomes happy. जब हमारी भावना, हमारी चेतना ऐसा ही रहता है तो हमें एक्चुअली रियल जो आनंद है वो हमको मिलता है. And then because he is happy, then I also become happy. और क्योंकि जिनके लिए उत्सव मनाया जाता है उनको खुश करना है, वो खुश होते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली जो आयोजन करते हैं वो भी खुश होते हैं. Like if you have some friend or somebody close to you and you want to make him happy, so what can you do? अगर आपके कोई बहुत नजदीक हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनको आपको खुश करना है तो आप क्या करते हैं? Then you can give him a gift, right? तो आप उनको कोई गिफ्ट देते हैं खुश करने के लिए. But the consciousness should be about him. So okay, you are giving a gift because now you love the person. इसमें जो चेतना आपकी होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जिनको आप खुश करना चाहते हैं उनको किस चीज से खुशी मिलती है वही हम करें, वही गिफ्ट दें. And if you do with love, then the person will be pleased and naturally you will be happy that he is happy. अगर आप एक प्रेम भाव से कोई चीज किसको देते हैं खुश करने के लिए और उससे वो उनको खुशी मिलती है तो ऑटोमेटिकली खुद को भी खुशी मिलती है इसमें. But if the consciousness is not right, then what may happen? Now you are giving gift to your friend. Hey, take this. अगर चेतना आपकी सही नहीं है तो आप सही भाव से कोई चीज गिफ्ट नहीं दे सकते. आप दे भी रहे होंगे तो मन में वो भाव नहीं होगा, आप बिना प्रेम के कोई चीज देने की कोशिश करेंगे या देंगे. If you give it like that, it can be a very nice gift, but if the mood is not right, then he is not going to be happy. अगर इस प्रकार किसी को आप कोई गिफ्ट देते हैं, सही भावना से या सही चेतना से नहीं दिया जाता है, चाहे गिफ्ट कितना भी अच्छा हो, उनको जिनको आप दे रहे हैं उनको खुशी नहीं मिलेगी. And you may think, I did everything, I did so much. आप खुद सोच सकते हैं कि मैंने बहुत कुछ दिया या बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन so why are you not happy? तो आप पूछ सकते हैं, ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है, मैंने तो इतना कुछ किया, इतना दिया, लेकिन जिनके लिए किया वो खुश क्यों नहीं है? You may ask your friend like that. आप हो सकता है आपके मित्र से ये पूछें. And then he will say, well, I didn't feel that actually you give it to me because
no, you like me. हो सकता है वो आपको ऐसे उत्तर दें कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि आप मुझे ये चीज दिए, क्योंकि आपका मेरे लिए प्रेम भाव है इसलिए आपने दिया। ये हो सकता है वो कहें आपको। So the mood is wrong. इसका मतलब ये हुआ कि आपको गिफ्ट देने का जो भाव है, जो चेतना है, वो सही नहीं है। Now for the mood to be right, then the consciousness has to be proper. जो आपका भाव है, मूड है, उसको सही करने के लिए आपकी चेतना भी सही होना आवश्यक है। So that's why there is the adivas. इसलिए उत्सव के आयोजन से पहले हम अधिवास करते हैं, मनाते हैं। The adivas then establishes, all right, that person, then I'm going to offer something to the person. तो अधिवास के जरिए आप अपने स्वयं का जो चेतना है उसको तैयार करते हैं कि मैं अब जो आपके ऑफरिंग के जो व्यक्ति हैं, भगवान हैं, उनको ऑफर करने के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं उससे। And the adivas can go on for some days. इस प्रकार अधिवास कुछ दिनों के लिए भी कंटिन्यू कर सकता है। But the main adivas then happens always the night before the ceremony. लेकिन जो मुख्य रूप से जो अधिवास है, जो उत्सव मनाने जा रहे हैं, उसके नाइट बिफोर ही होता है। But you see, like, okay, Janmashtami is in 2 weeks. So now we are already talking about how to celebrate Janmashtami. अभी जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, तो अभी हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि जन्माष्टमी उत्सव कैसे हम मनाएं। That's part of adivas. इसको ही अधिवास का एक पार्ट कहा जा सकता है। There will be many more speakers. There will be talking about Krishna's pastimes and so many other things. और भी आगे प्रवचन में बहुत सारे स्पीकर्स होंगे जो आपको भगवान कृष्ण के पास्ट टाइम्स के बारे में और कई चीज भगवान के बारे में आपको बताएंगे। And what for? To focus the mind for the main day. ये इसलिए होने जा रहा है क्योंकि आपको मानसिक रूप में उत्सव के लिए जो मेन जन्माष्टमी का दिन है उसके लिए तैयार करना है और आपको चेतना को भी तैयार करना है। So when the main day, the main celebration comes, then we are ready. We are focused that yes, now I want to do something for the Lord. तो इसके फलस्वरूप जब मेन उत्सव आता है उस दिन आपको ऐसा लगता है, आपके मन में ऐसा भाव आता है कि यस, मैं भगवान को ऑफर करने के लिए मैं तैयार हूं, प्रस्तुत हूं। So now what can we do for the Lord? तो हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? See, so the Lord, He can accept anything, whatever you offer. भगवान जो भी आप ऑफर करेंगे उसको स्वीकार करते हैं। But He is not interested in the thing you are offering. क्योंकि भगवान क्या आप ऑफर कर रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें उसको नहीं देखते हैं। See, the Lord, He is called Bhagavan. क्योंकि उनका नाम है वो भगवान है। Bhagavan means what? Means who? भगवान का मतलब क्या है? कौन है भगवान? Means one who has all opulences. भगवान का मतलब वही है कि जिनके पास सभी ऐश्वर्य उनके पास है, वही भगवान के नाम से जाने जाते हैं। So He has everything. सो भगवान के पास सब कुछ है। But one thing we can offer, and that is our devotion, bhakti. फिर भी हम एक चीज ऑफर कर सकते हैं भगवान को, वो है भक्ति, जो हमारा मन में भक्ति भाव है। And with that bhakti, then we can definitely please Krishna. हम सभी उसी भक्ति के जरिए ही भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। But without bhakti, you can offer now whatever you want. You can offer crores of rupees, you can offer gold, whatever. But if there is no bhakti, Krishna doesn't need it. अगर हमारे पास भक्ति भाव नहीं है तो हम चाहे कुछ भी भगवान को अर्पण करें, कुछ भी हम भगवान को ऑफर करें, उससे भगवान खुश नहीं होते हैं।
In Bhagavad Gita, then Krishna actually says what he likes to be offered by his devotees. भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं ही बताते हैं कि वो अपने भक्त द्वारा क्या ऑफर किया जाना पसंद करते हैं. In one shloka, then he says, Patram pushpam phalam toyam yome bhakta prayachati. Then tad aham bhaktyupahritam ashnami prayatatmanaha. What does it mean? ये जो श्लोक का क्या तात्पर्य है? Now he is saying we can offer patram, pushpam, phalam, toyam. So simple leaf, tulsi leaf, water, some fruit, some flower. He will be happy with that if it is offered with devotion. तो इस श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि मैं पत्र, पुष्प, फल और जल उससे भी संतुष्ट रहूंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, बशर्त कि आपके मन में मुझे ये अर्पण करने के लिए भक्ति का भाव है. And Krishna is looking for the pure consciousness. That's what we want him to offer. It's for him. भगवान यही एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हम एक शुद्ध चेतना से उनको कुछ अर्पण करें. तो वो चाहते हैं कि हम इस भाव से उनको कुछ अर्पण करें, ऑफर करें. I had seen once in Assam, is Bhakti Purushottam Maharaj from Mayapur. Then he is doing tribal preaching in Assam. मैंने एक प्रभु जी से मुलाकात हुई थी जो असम में आदिवासी समुदाय के लोगों में प्रचार का कार्य करते हैं. Very simple people and but very nice people, very kind. आदिवासी लोग जो होते हैं बहुत सिंपल, सरल होते हैं और बहुत दयालु होते हैं. And they are not rich like you. They don't have no big mansions and no cars and everything. They live in the village and they are happy just having few cows, some field, growing little sabjis. That's it. जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, गांव में रहते हैं, उनके पास शहर जैसा बहुत कुछ धन और उनके पोजीशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है. वो बहुत खुश रहते हैं गांव में, जो सिंपल लाइफस्टाइल है, सरल जीवन है, और उनके पास जो थोड़ा बहुत है उसी से ही संतुष्ट रहते हैं. And their life is tough. और उनका जो जीवन है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कष्टदायक है. Many of the houses they don't have running water. बहुत सारे मकानों में पीने का जल भी उपलब्ध नहीं है. They have to pump it. They have to, उनको पंपिंग करने की आवश्यकता रहती है. Right? So, some houses don't have still electricity. Still no electricity. वहां पर जो उनका जीवन है वो शहर जैसा नहीं है. Now you may think, oh, this is so bad. No, I wouldn't want to live there. हो सकता है आपको ये सुन करके ये लगे कि वहां तो जीवन जो है जीने लायक नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट है, हम तो वहां नहीं रह सकते हैं. But they don't have to run to the office every day. लेकिन उन लोगों को रोज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. They don't spend many hours in traffic jam of Delhi. उनको अपना समय कोई ट्रैफिक जाम में, जैसे दिल्ली शहर में हमको फेस करना पड़ता है, उसमें बिताने की जरूरत नहीं पड़ती है, फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है. They are not in anxiety, like you are. No, not in anxiety. They are not, जैसे हम लोग शहर में महसूस करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, वो वैसा भी नहीं है. Over there, their life is peaceful. उनके लिए जीवन बहुत शांतिपूर्ण है. So, now in that scenario, then Bhakti Purushottam Maharaj, and he preaches and he tells people now how to offer Krishna what they have. ऐसा ही आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच
जो महाराज Bhakti Purushottam Maharaj. भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जो प्रचार करते हैं, उनको यही बताने की कोशिश करते हैं कि भगवान को कैसे कोई चीज अर्पण किया जा सकता है. So he gives to the people no small pictures of Radha Madhava, Panchatattva. भक्ति पुरुषोत्तम महाराज उनको राधा माधव पंचतत्व के फोटोग्राफ्स जो है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. Small altar like that. स्मॉल जो अल्टर हम घर में रखते हैं उसको भी रखना सिखाते हैं. And now he tells them this verse. That's what you offer. और वो उनको बताते हैं कि आपके पास ऑफर करने के लिए यही है. So whatever you have, now whatever you cook, just you offer that to Krishna with love and devotion. और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज उनको बताते हैं कि अब आप जो भी घर में पकाते हैं तो उसको भगवान को with love and devotion आप ऑफर करें, अर्पण करें. But now before you offer it, you add tulsi leaf. और ये भी महाराज जी बताते हैं कि कोई भी ऐसा भोग लगाने से पहले, ऑफर करने से पहले उसमें आप तुलसी के पत्ते जरूर रखें. So then once we were going to visit the houses of the devotees. एक बार एक दिन महाराज जी जा रहे थे वहां एक जो भक्त हैं, डिवोटी हैं, उनके घर. And there was in one house, then the man, the husband was gone, and there was only the lady of the house. एक घर में जो घर का मेल मेंबर है, पुरुष व्यक्ति है, वो नहीं थे, और जो स्त्री मेंबर हैं वो घर में मौजूद थी. And then she was offering now to the deities, to the picture, water and now with tulsi leaf. और वो जो माताजी थी घर में, वो भगवान को पानी, जल और उसके साथ तुलसी के पत्ते ऑफर कर रही थी. But somehow or other, then no, she was crying. ये करते समय जो माताजी है वो रो रही थी. So, okay, we saw it, but we didn't know why is she crying. What happened? Something happened. महाराज जी ने माताजी को देखा रोते हुए और ये समझ नहीं पाए कि क्यों रो रही हैं वो. But actually what happened is, this is what the other people told us, that she was crying, feeling that she does not have more to offer to Krishna. जैसे कि कुछ लोगों ने बताया महाराज जी को, माताजी इसलिए रो रही थी क्योंकि उनके पास भगवान को ऑफर करने के लिए, अर्पण करने के लिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं था. So you see, now she didn't have any expensive like golden or silver paraphernalia. जैसा आप देख सकते हैं कि माताजी के पास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कोई चीज था नहीं, सोना चांदी भगवान को अर्पण करने के लिए उनके पास ऐसा कुछ नहीं था. She didn't have any expensive bhoga. उनके पास, माताजी के पास कोई एक्सपेंसिव भोग भी नहीं था भगवान को अर्पण करने के लिए. But because of her devotion, then the proper bhav came. Krishna was happy by her offering. क्योंकि उनके मन में भक्ति भाव से वो कुछ दे रहे थे और भगवान कृष्ण उनके भक्ति भाव से ही संतुष्ट हुए. So it's not what we are offering, but it is how, with what consciousness we are offering that. So इसमें ये समझने की बात है कि हम क्या भगवान को अर्पण कर रहे हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना किस भाव से हम भगवान को दे रहे हैं, अर्पण करते हैं, वो है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है. In Nectar of Devotion by Sri Rupa Goswami, there is also one story mentioned. श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया भक्ति रसामृत सिंधु में एक जगह इसका उल्लेख है. There was one very devotional Brahmana. एक समय में एक ब्राह्मण थे जो भगवान के भक्त थे. But he was poor. He didn't have really much. लेकिन वो ब्राह्मण जो भगवान के भक्त थे वो गरीब थे, उनके पास बहुत कुछ धन था नहीं. And so he was trying to
contemplate or to figure out how he can offer some things to Krishna. वो जो ब्राह्मण भक्त थे वो हमेशा सोचते थे कि मैं कैसे कुछ चीज मेरे पास हो ताकि मैं भगवान को अर्पण कर सकूं. And once there was a discourse, there was Krishna Katha, or एक बार एक जगह कृष्ण कथा का आयोजन हुआ था. So in that, then there was one learned Pandit, and he was explaining how we can offer things to Krishna. उस कृष्ण कथा में एक पंडित इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम कोई भी चीज भगवान कृष्ण को कैसे अर्पण करें. There are the forms of the Lord, they can be made from different elements. Forms of the Lord can be made from different elements. भगवान के अलग अलग फॉर्म होता है जो अलग अलग एलिमेंट से बनता है या एलिमेंट है उसमें. See, like here, now these Archa Vigrahas, the Lord here is made of stone. जो इस मंदिर में आप देख रहे हैं अर्च विग्रह वो स्टोन से बना हुआ है. Then can be metal. और ऐसा ही अर्च विग्रह मेटल धातु से भी बन सकता है. Can be a picture. और ये एक पिक्चर भी हो सकता है, फोटोग्राफ जो पिक्चर होता है वैसे भी हो सकते हैं. It can be a wood. और ये लकड़ी का भी बनाया जा सकता है. A clay. मिट्टी का भी बनाया जा सकता है. And also it can be a mental picture. और वैसा ही भगवान का जो अर्च विग्रह है वो एक मानसिक रूप में आप जो छवि बनाते हैं भगवान के बारे में, मेंटल पिक्चर, वो भी हो सकता है. So to the Lord in these forms we can with our devotion offer various upacharas with our devotion. So ऐसा ही जो भगवान के अलग अलग रूप है उनको हम भक्ति भाव से डिवोशन के साथ ही कुछ अर्पण कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं. So when the Brahmana heard that, so I don't have to actually get some expensive murti to do my offering, to do my puja to the Lord. तो कृष्ण कथा में जो ब्राह्मण भक्त थे जब उन्होंने ये सुना उनको लगा कि इसका मतलब ये है मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भगवान का अर्च विग्रह को मतलब होने की आवश्यकता नहीं है कुछ मेरे द्वारा ऑफर करने के लिए, अर्पण करने के लिए. So when he came home, then he started to do offerings to the Lord in his mind. उनको लगा कि जब मैं मानसिक रूप में भगवान को सोच सकता हूं और मानसिक रूप से भगवान को कुछ चीज ऑफर कर सकता हूं, अर्पण कर सकता हूं, तो ये आइडिया उनको उनके मन में आया. So he would sit down and he would meditate. तो भक्त ने क्या किया, वो बैठे और उसके बाद ध्यान किए, भगवान के फॉर्म के ऊपर उन्होंने ध्यान किया. So he would visualize the beautiful form of the Lord. उन्होंने अपने मन में भगवान का एक बहुत सुंदर फॉर्म जो है, रूप है, उसको विजुअलाइज किया, उसके बारे में सोचा अपने मन में. And he would he would sit the Lord on a beautiful Vyasasana. उन्होंने अपने मन में ये देखने की कोशिश करी कि भगवान को उन्होंने एक बहुत सुंदर व्यासासन के ऊपर स्थापित किया. And he would offer him aratis. और उन्होंने भगवान को आरती अर्पण किया, आरती किया. All with the most expensive paraphernalia, whatever he could think of, golden lamps with jewels. उन्होंने ये भी सोचा कि उन्होंने भगवान को बहुत एक्सपेंसिव जो ज्वेलरी होता है उससे सुशोभित किया है. And he was really focused on the offering to the Lord. He was really focused on the offering. और वो पूर्ण रूप से जो ऑफरिंग है भगवान को जो अर्पण कर रहे हैं उसके ऊपर ही उनका ध्यान केंद्रित था. And one time then he was cooking also in his mind. He was cooking a sweet rice. यहाँ तक कि उन्होंने मानसिक रूप में ये भी सोचा कि बहुत अच्छा व्यंजन वो बना रहे हैं भगवान के लिए
और जो स्वीट राइस है वो बना रहे हैं। मानसिक रूप से ये सोचा। So he, as the rice was already cooked, he kept it on the side, cooling down, and he was preparing the other items for the Boga offering. और जब वो स्वीट राइस बन गया तो भक्त ने स्वीट राइस को अल्टर के सामने रखा और अन्य जो व्यंजन थे, आइटम्स थे, उसको बनाने के लिए उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। And when he was ready for the offering to the Lord, so he wanted to try if the sweet rice is already cold enough. जब वो उस स्टेज में आ गए कि भगवान को अपने सारे व्यंजन अर्पण कर सके, तो वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जो स्वीट राइस है वो ठंडा हो गया या नहीं। So with his finger he touched the pot to see how cold it is. तो वो ब्राह्मण भक्त ने अपने उंगलियों के द्वारा वो टच करके देखने की कोशिश करी कि स्वीट राइस ठंडा हो गया या नहीं। But the sweet rice was very hot and he got burnt. लेकिन स्वीट राइस जो था वो बहुत गर्म था और उन्होंने अपना उंगली जो है वो उसको बर्न किया। So he burned his finger, and then because of that, then he broke his meditation. Yeah, the meditation broke. क्योंकि उंगली जल गया है उनका, तो उससे उनका जो ध्यान था भगवान के ऊपर केंद्रित, उससे डिस्टर्बेंस आ गया। And at the time he looked at his finger and it was burnt. एंड उन्होंने अपना उंगली की तरफ देखा और रियलाइज किया कि ये जल गया है। So he didn't know what's happening. उनको ये समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। And at the same time in Vaikuntha, और उसी समय वैकुंठ लोक में, and Lord Narayan, he was smiling. उसी समय वैकुंठ लोक में भगवान नारायण मुस्कुरा रहे थे। And Lakshmi Devi, then, my Lord, what's happening? Why are you smiling? एंड माता लक्ष्मी देवी ने उनसे पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? And then he said, that's nothing. और भगवान ने कहा कोई खास बात नहीं है। And then later on he explained, actually, no, there is one Brahmana and he was doing such a wonderful offerings to me. And then now in his meditation, while doing the offerings, he burned his finger. सो भगवान नारायण ने लक्ष्मी माता जी को ये कहा कि एक ब्राह्मण भक्त था जो मुझे बहुत सारे व्यंजन मेरे लिए अर्पण कर रहे थे और उससे इस प्रकार उनका उंगली जल गया है। And he said, well, this Brahmana, now he is eligible to enter Vaikuntha. तो भगवान नारायण ने कहा कि अब ये ब्राह्मण भक्त जो है वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के लिए उत्तीर्ण हो गए हैं, क्वालिफाई कर गए हैं। So then Lord Narayan, he sent his Vimana, and then brought the Brahmana. उसके पश्चात भगवान ने अपने विमान को भेजा और उस ब्राह्मण को वैकुंठ लोक में ले आए। All about just meditating, visualizing, I am making the offering to the Lord. तो इसमें आपने ये देखा कि जो भक्त ब्राह्मण थे उन्होंने भगवान के बारे में बस सोचा, भगवान के बारे में सोचा, उनको अर्पण कर रहे हैं ये सोचा, उसी के फलस्वरूप उनको वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के लिए भगवान का बुलावा आया। So if we keep this in our mind, अगर हम इसको अपने मन में रखते हैं, then we can also offer to the Lord the best what we have, our devotion. अगर इसी के बारे में हम हमारे सोच को रखते हैं, चेतना को रखते हैं, तो हम हमारे पास जो भी कुछ है उसको हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं भक्ति भाव से। And then what is it going to be? That depends on your situation. और आप क्या अर्पण कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा आप किस अवस्था में हैं, किस सिचुएशन में हैं। If you are well to do, make a huge offering. Make many things to offer to the Lord. अगर आप धनी हैं, आपके पास बहुत वेल्थ है, तो आप भगवान को अर्पण करने के लिए बहुत कुछ सामग्री एकत्रित करें, अर्पण करें। But anybody can offer a water
and a tulsi leaf to the Lord. लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त जल और तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण कर सकते हैं. So, and then of course, you can come here and you can also render services now for the Lord. और आप मंदिर में भी आ सकते हैं और भगवान के लिए विभिन्न प्रकार के सेवा के मार्फत सेवा भी अर्पण कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं भगवान के लिए. You can offer your time and then you can maybe help with the flower decorations. आप मंदिर में जो फूल में सजावट होता है उसमें भी आप योगदान कर सकते हैं, वो सेवा भी दे सकते हैं. You can bring some flowers, you can bring some fruits. आप फूल अपने साथ भी ला सकते हैं, आप फल भी अपने साथ ला सकते हैं. You can recite some nice bhajan for the Lord. आप भगवान का नाम का कीर्तन भजन भी कर सकते हैं. There are so many ways how you can offer your devotion to the Lord. ऐसा ही आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार से आप भगवान को, आपका जो भक्ति भाव है वो उसके द्वारा आप सेवा कर सकते हैं विभिन्न प्रकार से. But this is what we have to want. We have to develop the desire, yes, I want to offer something to the Lord. लेकिन उससे पहले ये शर्त है, ये कंडीशन पूरा होना चाहिए कि हमारा मन में भगवान को कुछ ना कुछ अर्पण करने के लिए एक भाव होना चाहिए कि हम भगवान को ये चीज देना चाहते हैं. Then he will be very happy. उसके पश्चात भगवान खुश होंगे आपसे. So we can keep this in our mind, and this is something which before every celebration we can do it like that. So प्रत्येक उत्सव से पहले हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, हमारा मन में रखना चाहिए और इसी प्रकार अपने आप के चेतना को, भाव को तैयार करना चाहिए उत्सव को मनाने के लिए. So we can do the adivas, so then the consciousness, our consciousness is purified and focused on the celebration itself. So इस प्रकार हम अधिवास के दौरान हमारे चेतना का शुद्धिकरण कर सकते हैं और जब उत्सव का दिन आता है उस समय भगवान को कुछ अर्पण करने के लिए जो भक्ति भाव की जरूरत है उसको अपने चेतना में डेवलप कर सकते हैं. And that way, then we will get the most out of our offerings to the Lord. तो उससे जो हम भगवान को अर्पण करते हैं उससे ज्यादा से ज्यादा फल हमको मिलेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमको मिलेगा. Hare Krishna. So, any questions? We have 5 more minutes. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for this wonderful lecture. Prabhuji, how should we offer our false ego to the Lord? What should? My question is, how should we offer our false ego to the Lord? Why would you want to offer your false ego? The point is that the false ego is something which we think we are. You want to translate it? Okay. The प्रश्न ये था कि हम अपने आप को कैसे प्रश्न अहंकार. हम हमारे जो अहंकार है, फॉल्स ईगो है, उसको कैसे और भगवान को अर्पण कर सकते हैं. See, the false ego is connected to the body. ये फॉल्स ईगो जो है, अहंकार है, वो इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं. And the materialistic consciousness and the mind and intelligence connected to the ahankar is about me. और जो हमारी मटेरियल कॉन्शियस है, भौतिक कॉन्शियसनेस है और माइंड है, उससे मटेरियल कॉन्शियसनेस It's about me. इट्स अबाउट मी, जो अपना फॉल्स ईगो के साथ आइडेंटिफाई करता है. So, and what is it about me? That I am the Lord of everything. उस फॉल्स ईगो से और मटेरियल कॉन्शियसनेस से हम अपने आप को, जो भी कुछ हमारे सामने है, हमारे पास है, उसका ईश्वर समझते हैं, अपने आप को उसका लॉर्ड समझते हैं. I go to work, I make money. The money is mine. I buy things.
it's mine. I buy a car, it's mine. I buy a house, it's mine. It belongs to me. I can do whatever I want there. जब हम धन कमाते हैं, धन उपार्जन करते हैं, हम सोचते हैं ये धन हमारा है, और उस धन से अगर हमने कोई मकान खरीदा या कोई गाड़ी खरीदी, कोई भी चीज खरीदा, तो हम सोचते हैं ये हमारा ही है. That's the problem with the false ego. तो जो अहंकार है, फॉल्स ईगो है, इसका जड़ जो है, उसका मूल कारण यही है, क्योंकि हर चीज को हम हमारे साथ ही जोड़ने की कोशिश करते हैं. So the best way how we can offer our ahankar to the Lord, it's to desire to get rid of it. So हमारा अहंकार को भगवान को अर्पण करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि हम सोचें ये सब चीज ये भगवान के लिए है, ना कि हमारा खुद का है, हमारे लिए है. Atmanivedana. आत्मनिवेदनम, That's the best way. यही है सबसे आसान तरीका. So desire that. Now, really try to develop the desire. I want to become the servant of the Lord, not that I am the Purusha. सो हमें ये सोचना चाहिए, हमारा मन में ऐसा डिजायर होना चाहिए कि मैं भगवान का एक सेवक बनूं, ना कि मैं अपने आप में एक लॉर्ड बनने की कोशिश करूं या स्वामी बनने की कोशिश करूं. स्वामी. That's the best way. Hare Krishna.